بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 شعبان سوموار کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، اگر آپ 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ ناظرین، آج 18 شعبان سوموار کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے تمام تنگ دستی دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 18 شعبان سوموار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، میرا رب غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ ماہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، رب کی پیارے محبوب کے مہینے میں رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ شعبان کے مہینے میں رب تعالیٰ رزق اور دولت کی برسات فرماتا ہے۔ اسی مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں رزق کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں آپ کے پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے کہ آپ کو پورے سال میں کیا ملے گا، آپ سے کیا لے لیا جائے گا، آپ کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ شعبان کے مہینے میں اگر کوئی رب تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی خواہش پوری کروانا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح سے شام تک دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج 18 شعبان سوموار کے دن نے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر 18 شعبان سوموار کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ شعبان کے مہینے کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ 50 کروڑ ایسے ہی مل جاتا ہے، لیکن میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ سے اعمال بتا رہا ہوں کہ جن کو واقعی پڑھنے سے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے، جسے پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ان سارے مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ آج 18 شعبان سوموار کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنی بہنوں کو، آج اپنے تمام لوگوں کے حوالے وہ کامیابی کا راز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی 18 شعبان سوموار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رمضان المبارک سے پہلے رب کی ذات آپ کو وہ سب عطا فرمائے گی جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج گاڑی، مکان، نوکری، شادی جو بھی چاہے مانگ لو، آج ہی وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج 18 شعبان سوموار کے دن نے یہ وظیفہ پڑھیے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم سے رحمتوں
बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 18 शुबान सोमवार के दिन का ये वजीफा लाजमी पढ़ लें। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, मेरे रब ने चाहा तो मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये रिज़्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। वो रब इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। दोस्तों, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब करीम की जात तो खुद दे रही है कोई मांगने वाला कि जिसकी हाजत को अल्लाह ताला पूरा कर दे, तो फिर बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो 18 शुबान सोमवार के दिन को लापरवाही में गुजारेगा। वो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज माह शुबान की 18 तारीख सोमवार का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक मर्तबा असूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज अगर आप एक लंबी लिस्ट बनाकर बैठोगे तो आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगते चले जाओगे, मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज हर वो बंदा जो लाचार है, मायूस है, डिप्रेशन में है, खुद को बंद गली में महसूस करता है, वो आज ही ये वजीफा पढ़ते दौरान अपनी मकसद के नियत लाजमी करें। और अगर कोई फकीर भी अपने मकसद की नियत करके बैठेगा तो मेरा रब फकीरी से बादशाही अता फरमाएगा। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तौज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आप ने अपने तमाम मकासद के लिए नियत कर ली, तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब करीम की एक नाम का वजीफा है। ये नाम एक ऐसा ताकतवर नाम है कि जब कोई बंदा रब को इस नाम से पुकारता है फौरी तौर पर गैबी मदद आ जाती है। गैब से फरिश्ता रिज़्क और दौलत के खजाने छोड़ जाते हैं। गैब से हर मुश्किल परेशानी का हल हो जाता है। वो जो कई सालों से रुके हुए काम है, कई सालों से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, रातों रात हर परेशानी का हल हो जाता है। आपने पहले नंबर पर या लतीफू या अल्लाह को पढ़ना है। या लतीफू और रब करीम का सफाती नाम है, या अल्लाह रब करीम का जाती नाम है। आपने या लतीफू या अल्लाह को पढ़ना है। या लतीफू एक ऐसा खास अमल है कि अगर आप किसी ताकतवर दुश्मन को ज़हन में रख कर पढ़ोगे तो मेरा रब उसके दिल को भी नरम फरमा देगा। अगर आप किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो आपने या लतीफू या अल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या लतीफू या अल्लाह 1 बार हो गया, या लतीफू या अल्लाह 2 बार हो गया, या लतीफू या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप या लतीफू या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने तवज्जो से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, यकीन कामिल से पढ़ना है। आपके मुंह से जो भी बातें निकलेंगी, आपके जो भी हाजात होंगी, वो या लतीफू या अल्लाह पढ़ते हुए फौरी तौर पर पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और ये वजीफा अर्जेंट काम करता है। ये इतना
तेरे बहदफ है कि आप अभी मांग रहे होंगे, फरिश्ते लेकर आ जाएंगे। पहले नंबर पर या लतीफू या अल्लाह को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते, साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा कुरानी सूरत का वजीफा है। वो कुरानी सूरह इखलास है। सूरह इखलास की कदर कीमत तो हर कोई जानता है। सूरह इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है, रब की बेनियाजी को बयान करती है। सूरह इखलास वो सूरत है कि जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों को सवाब मिलता है, जिसे सिर्फ 2 बार पढ़ने से कुरान मजीद के 20 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। आज 18 शुबान सोमवार के दिन आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। इस महीने में जब एक नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, मांगने वाले को 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाजा जाता है, मांगने वाले की नस्लें आबाद हो जाती हैं, ये उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। तो आज कुरान मजीद का सवाब कितना ज्यादा होगा। एक नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा है और एक कुरान मजीद का सवाब कितना ज्यादा होगा। सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब होगा और एक मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत से रब की जात राजी हो जाएगी। और जब कोई बंदा आज 18 शुबान सोमवार के दिन से सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेगा, आंखों में आंसू लिए तड़पते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए, जो भी मांगते चले जाओगे मेरा रब झोलियां भर भर कर साफ फरमाएगा। सवाब के लिए एक बार सूरह इखलास की तिलावत समात फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु सम्मद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान दिल में जो आता चला जाए मांग लेना। आप रब करीम से जो भी मांग सकते हो मांग लेना, फिर ना कहना कि बताया नहीं। ये मौका साल में सिर्फ 1 बार मिलता है, आज रब खुद दे रहा है। ये ना हो कि कल मुश्किल वक्त में आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। आज जब रब रिज़्क की तकसीम कर रहा है तो पहले नंबर पर या लतीफू या अल्लाह, दूसरे नंबर पर सूरह इखलास और तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ, इसको पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। आप जिस रिज़्क के लिए ठोकरें खाते हैं, सिफारिशें कराते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ते हैं, आज जो तीसरे नंबर पर जो वजीफा बताने जा रहा हूँ इसको पढ़ने से 300 रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं। इसको पढ़ने से रिज़्क की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं। ये वज़ाइफ हर कोई नहीं पढ़ता। आज खुशकिस्मत ही ये वजीफा पढ़ेगा। खुशकिस्मत वही तौफीक होगी जिसकी रब ने तकदीर बदलनी है, जिसके हालात बदलने हैं, जिसको गुर्बत तंगदस्ती से निजात देनी है। आपने तीसरे नंबर पर या रज़ाकू या अल्लाह को पढ़ना है। ये रब करीम के 2 नाम है। या रज़ाकू रब करीम का सफाती नाम है, या अल्लाह रब काबा का जाती नाम है। या रज़ाकू या अल्लाह को पढ़ने वाले पर रिज़्क के 300 दरवाजे खुलते हैं। या रज़ाकू को पढ़ने वाले पर रिज़्क इतना दिया जाता है कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास मालो दौलत रखने की जगह है, अगर आप मालो दौलत को संभाल सकते हैं तो या रज़ाकू या अल्लाह को पढ़ ले। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकू या अल्लाह 1 बार हो गया, या रज़ाकू या अल्लाह 2 बार हो गया, या रज़ाकू या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़ाकू या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। एक नुक्ता, एक चीज बच्चों की तरह समझाने का मकसद ये होता है कि आपसे किसी भी तरह की गलती कोताही ना हो। आपकी एक छोटी सी गलती से वजीफा ज़ाया भी हो सकता है। मेरा मकसद एक बात को बार बार समझाना इसलिए होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मुस्तनद वज़ाइफ हैं। जब शुबान में रब की जात कमली वाले आका के सदके झोलियां भर रही है तो फिर आप क्यों अपनी झोलियों को नहीं भरवा रहे। जब देना रब ने है तो आप क्यों खुशियों से महरूम रहें। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। याद रखिएगा, जब आप अमल शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपनी हाजत मुराद, जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, और जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो आखिर में अपने हाथ उठाएं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, रिज़्क में बरकत और वसात के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।